the last lecture of the chapter of financial statements, final accounts with adjustments. Question number 35, comprehensive questions inclusive of GST. Question number 35th. Following balances have been withdrawn from the books of Ratan Roy and prepared trading P&L account and a balance sheet as at 31st March 18. Trial balance तो नहीं given. Closing stock 37,500. Goods worth 2,700 were distributed as free samples. Goods worth 2,250 were used for personal use, personal use. Purchases में से minus, free sample is advertisement. Drawings में plus, जो personal use proprietary के लिए and purchases. पर ध्यान दीजिएगा इस पे CGST और SGST adjust होगा 6%. Depreciate computers, computer में से minus and debit side of P&L. Included in trade expenses is office insurance premium 3,600 paid for the year ending 30th June 18. हमने 1 जुलाई को इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया. आई रिपीट, हमने 1 जुलाई को इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 30 जून तक पूरे साल के लिए. तो 3/12 करेंगे. 3/15 नहीं करना. वहां पे लिखे फॉर द ईयर, 12 महीने के लिए पे की है फॉर द ईयर. तो 3/12 करेंगे, 3/15 नहीं. हाँ, अगर लिखा होता इट इज पेड अप टू 30 जून, उस केस में हम 3/15 कर दे. इट इज रिटर्न फॉर द ईयर. लेट्स मेक द फॉर्मेट. स्मॉल क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये. इन द बुक्स ऑफ रतन रॉय, in the books of Ratan Roy, trading and profit and loss account, for the year ending 31st March 18. This is trading and P&L continued. This is P&L. And here we have his working notes. Balance sheet as at 31st March 18. क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं प्रॉपर फॉर्मेट कर रहा हूं मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट की तरह. हेडिंग्स भी दे रहा हूं जैसी हमें देनी चाहिए अगर मार्शलिंग फॉलो कर रहे हैं. तो फर्स्ट वी हैव इज कैपिटल, देन वी हैव इज नॉन करंट लाइबिलिटीज, then we have is current liabilities. Here we have is non-current assets. And here we have is current assets. Okay, the first we have is capital. Internal liability 1,23,000. Life insurance premium. Life insurance premium is drawings minus life insurance premium 4,200 minus plant and machinery, non-current asset without depreciation
7,500. Stock at commencement, opening stock, debit side of trading account. Debit side of trading account. 2, opening stock. Purchases, debit side of trading account. Sales return, deduction from sales, credit side of trading account. Sundry debtors, current assets. और डेटर्स में कोई प्रोविजन और एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, सो विल जस्ट पुट इन द आउटर कॉलम. नो बैड डेट्स, नो डिस्काउंट प्रोविजन, नो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. फर्नीचर asset, non-current asset. Computers, non-current assets. But we do have adjustment, depreciation, minus depreciation. कंप्यूटर में डेप्रिसिएशन 15% बोली गई है. 60,000 का 15% बनता है 9,000. 51,000. And depreciation on computer will be debited in P&L account. 2, depreciation on computers, 9,000. Manufacturing expenses, debit side of trading account, 2, manufacturing expenses. Carriage inward, debit side of trading account. Direct expense it is. Carriage outward, P&L account, indirect expense. ट्रेड एक्सपेंसेस, कहने के लिए ट्रेड है तो ट्रेडिंग में जाएगा, ऐसा गलत है. इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 2, ट्रेड एक्सपेंसेस. सन्ड्री क्रेडिटर्स, बट वेट, इसकी एडजस्टमेंट है ट्रेड एक्सपेंसेस की. Included in trade expenses and office insurance premium, 3600 is paid for the year ended 30 June, minus prepaid. How much? 3,600 is for 3 months, April, May, June. 900. प्रीपेड ट्रेड एक्सपेंसेस और प्रीपेड ऑफिस इंश्योरेंस. मैं ऑफिस इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देता हूं. इस ट्रेड एक्सपेंसेस 23,100 में, ट्रेड एक्सपेंसेस 23,100, मटीरियलिटी कंसेप्ट, इसके अंदर छोटे मोटे सारे खर्चे डाले हुए हैं. इस 23,100 में से 3,600 रुपए का ऐसा ऑफिस का खर्चा है जो 30 जून तक पे किया गया है और बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को. तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने का हो गया प्रीपेड. प्रीपेड इज करंट एसेट.
प्रीपेड इंश्योरेंस 900। ट्रेड एक्सपेंसेस के अंदर है तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ट्रेड एक्सपेंसेस, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। मूविंग टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स 13,500। सेल्स, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 1,86,000। Purchase return subtracted from purchases minus returns 1,500। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर लिखें कि नीचे, एक्सपेंस शफल हो सकते हैं। मैंने जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है। डिस्काउंट अलाउड, डेबिट साइड ऑफ P&L account to discount allowed। Discount received, income, credit side of P&L account। Rent received, credit side of P&L account। लाइटनिंग चार्जेस, अगर हीटिंग चार्जेस होता तो ट्रेडिंग में डालते, लाइटनिंग है तो ये होगी एक तरह से ऑफिस की लाइटनिंग। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L में डेबिट साइड टू lightning charges, debit side of P&L। internet and telephone expenses, debit side of P&L। bank balance, current asset। कुछ नहीं लिखा तो एसेट है, क्रेडिट होता तो वो लाइबिलिटी होता, मींस वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता। लोन फ्रॉम सुशील, सुशील से लोन लिया है, नॉन करंट लाइबिलिटी 12% लोन फ्रॉम सुशील। ये मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है बट आई एम मेंशनिंग दैट 15,000। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सुशील, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सुशील, लोन लिया है, लोन लिया है तो लाइबिलिटी, उस पर ब्याज देंगे, खर्चा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। कितना लोन ड्यू बनता है? 15 लोन का इंटरेस्ट 15,000 का 12% फॉर 12 महीने, डेट नहीं गिवन। मैंने सुशील, मेरा दोस्त था, मेरा भाई था, 15,000 का मैंने लोन लिया 12% के ऊपर, 1800 ब्याज बनता है। अरे भाई अपनी जगह, पैसा अपनी जगह, 15,000 का लोन लिया, 12% ब्याज तो ले रहा है वो, पूरे साल के लिए 1800 रुपया ब्याज बनता है। और अगर आप ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो जो हमने पे किया है, लेजर अकाउंट्स देखेंगे, जो पे किया वो है 1350, ब्याज बनता था 1800, पे किया 1350, तो 450 हो गया आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। सो 1350 पेड, 1350 पेड प्लस आउटस्टैंडिंग, हिडन एडजस्टमेंट है ये, परसेंटेज ट्रायल बैलेंस थी तभी तो हमें पता लगा 450 आउटस्टैंडिंग है, टोटल बन गया 1800। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इधर आएगा या इधर आएगा, दोनों जगह ठीक है। लोन के साथ वापस करने तो इधर, अदरवाइज हियर। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेंडिंग पड़ा हुआ है 450।
cool. Output CGST, output SGST, input CGST, input SGST. Working note number 2. इनपुट जीएसटी, इसका बैलेंस होता है डेबिट, CSI, 45 बड़ी अमाउंट है, 45,0. अभी एडजस्टमेंट करनी बाकी है. आउटपुट जीएसटी, इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, CGST, SGST, IGST. 30 nil. अभी एडजस्टमेंट बाकी है. डेबिट वाला प्लस, क्रेडिट वाला माइनस, क्रेडिट वाला प्लस, डेबिट वाला माइनस. एडजस्टमेंट नंबर 4. ट्रेड एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस प्रीमियम है जो 30 जून तक पे किया, प्रीपेड, एक एसेट और एक माइनस. कंप्यूटर डेप्रिशिएट करने हैं, कंप्यूटर में से माइनस, एक डेबिट साइड ऑफ P&L. क्लोजिंग स्टॉक 37,500. क्लोजिंग स्टॉक 37,500, एक करंट एसेट और एक क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बाय क्लोजिंग स्टॉक. अब रहेगी एडजस्टमेंट नंबर 2, जिसमें जीएसटी की ट्रीटमेंट रहेगी. वर्किंग नोट नंबर 3. गुड्स वर्थ 2700 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. 2700 के गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे दिए गए. द एंट्री टू रिकॉर्ड दैट इज एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट CGST to input SGST. 2700 के गुड्स, परचेजेस में 2700. टैक्स है 6%, 162. परचेजेस में से माइनस, एडवर्टीजमेंट हुई, P&L में डेबिट, परचेजेस में से माइनस, P&L में डेबिट, और ये जीएसटी में एडजस्ट होगा. इनपुट क्रेडिट है तो माइनस होगा, सो लेट्स डू एडवर्टीजमेंट. P&L में डेबिट साइड टू एडवर्टीजमेंट. वर्किंग नोट नंबर 3. परचेजेस में से माइनस 250 माइनस फ्री सैंपल्स और इनपुट में से माइनस 162 माइनस 162. हमने 45,000 का टैक्स दिया, उसमें से 162 का टैक्स उन गुड्स पर है जो हमने फ्री में सैंपल के तौर पे दे दिए. गॉट इट? तो वो जीएसटी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो गुड्स बेचे नहीं है, पर वो खर्चा हो जाएगा एडवर्टीजमेंट के नाम पे. Moving on, 2250 were used for personal purposes by the proprietor. 2250 के goods, drawings पर्सनल यूज के लिए किए ना. 2 purchases, 2 input CGST, 2 input SGST. 2250 के गुड्स में घर ले गया, 2250 के गुड्स में घर ले गया. परचेजेस में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, ड्राइंग्स पर इस पर जीएसटी लगी हुई है 135 की. परचेजेस में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, माइनस गुड्स विड्रॉन, या कैपिटल ड्राइंग्स में प्लस भी कर सकते हैं. परचेजेस में से माइनस, माइनस गुड्स विड्रॉन,
और जो इनपुट है, इनपुट CGST वो माइनस होगा क्योंकि इनपुट क्रेडिट है। इसका मतलब है मैंने 45,000 का टैक्स दिया, मैंने 45,000 का टैक्स दिया, उसमें से 135 का टैक्स उस गुड्स पर है जो मैं अपने घर ले गया। तो ये टैक्स अब टैक्स नहीं है, ये ड्रॉइंग्स है। कैपिटल में से -2520, गुड्स में से -2250 और इनपुट CGST SGST 135 माइनस। गुड, ये बन गया 44703, 44703। जैसे आपको पहले पता है, क्रेडिट वाला प्लस आउटपुट में, डेबिट वाला माइनस आउटपुट में, और इनपुट में डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। इसका टोटल आ रहा है 89,406 और इसका टोटल आ रहा है 60,000। आई के साथ तो कैंसिल होगा नहीं क्योंकि आई है ही नहीं, IGST है ही नहीं। जैसे कि मैं अपने सारे गुड्स पंजाब के से ही खरीदता हूं, बुक्स एंड ऑल, और पे भी कस्टमर से, जो क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी पंजाब के ही है, तो IGST का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो आई विल नॉट कैंसिल विद आई बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन कैंसल्ड। सी विल कैंसिल विद सी, एस विल कैंसिल विद एस। डेबिट मतलब इनपुट इज ग्रेटर देन क्रेडिट मतलब आउटपुट। $29,406। डेबिट बढ़ा है, डेबिट बढ़ा है तो किस तरफ जाएगा? एसेट साइड। डेबिट बढ़ा है तो एसेट साइड जाएगा, करंट एसेट, क्योंकि ये अगले महीने की GST पे एडजस्ट हो जाएगा। कई लोग मंथली बेसिस पे GST पे करते हैं, तो ये GST अगले मंथ में एडजस्ट हो जाएगा। और कई लोग GST क्वार्टरली बेसिस पे एडजस्ट करते हैं, 3 महीने बाद, तो ये 3 मंथ्स के बाद एडजस्ट हो जाएगा। इन बोथ द केसेस 1 साल के अंदर अंदर होगा। करंट एसेट, GST, लेजर, वर्किंग नोट नंबर 2, 29406। और अगर डिवाइड करने तो C और S में कर देंगे, विच इज 14,703। Good. So all the adjustments being done, this purchases balance to be closed 124,350. Yeah. We'll close trading account. We'll get GP. We'll close P&L account. We'll get NP or GL or NL, and we'll close the balance sheet. चलिए, take your time. Trading P&L and balance sheet, not balance sheet. Trading P&L and adjustments, working note, 2 minutes. All the working notes, trading and P&L, 2 minutes.
Now have a look on balance sheet for 1.5 minutes. Verify all the adjustments. अगर कोई चीज मिस हो गई है तो कंप्लीट कीजिए. So let's do the closings now. So let's close the trading account. 1,77,000, 37,500, 2,14,500. Credit side total. $63,450. ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 63,450. That will be transferred to the credit side of P&L account by gross profit 63,450. Let's close the P&L account now. The balance is net profit. $63,450 plus 1,800 plus 1,500. Credit side is 66,750. और सब्ट्रैक्ट करेंगे डेबिट साइड्स. $63,450 plus 1,800 plus 1,500 is 66,750. Minus 9,000 minus 450 minus 22200 minus 1,200 minus 600 minus 9,450 minus 1,800 minus 3,024. 19,026 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है. So net profit will be added in capital plus net profit 19,206 135,486 1,35,486 रुपए. It is 19,026. $135,306. Let me verify again. 26 रुपए है कि 206 रुपए है प्रॉफिट. ओके, 3 चीजें स्किप कर दी थी हमने, वो अब हम पोस्ट करेंगे. बैंक लोन आपको डेबिट साइड, नो डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस तो नहीं है. बैंक लोन 50,000 नजर आ रहा है. इट्स अ नॉन करंट लाइबिलिटी. बैंक लोन इट्स अ नॉन करंट लाइबिलिटी 50,000. बिल्स पेएबल इट्स अ करंट लाइबिलिटी 8,000. Provision for doubtful debts
ये है नया पॉइंट, स्टार मार्क कीजिए। दिस इज ओल्ड प्रोविजन, बट नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन, ना बैड डेट्स की ना प्रोविजन की, तो ये ओल्ड प्रोविजन ही न्यू प्रोविजन है। जो 2000 ट्रायल बैलेंस में गिवन है दैट इज ओल्ड प्रोविजन, बट नीचे क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, तो आपके पास दो ऑप्शन है। इसको इनकम मान लो कि हमें प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, P&L में क्रेडिट साइड विद नो नीड नॉट प्रोविजन, हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है। ओल्ड प्रोविजन को न्यू प्रोविजन मान लो, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए। तो अब जो न्यू प्रोविजन है या तो डेटर से माइनस करेंगे, प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर में किया था, प्रोविजन को एसेट से माइनस करते हैं, या करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। मैं करंट लायबिलिटी में लिख रहा हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टार मार्क 2000। इसके लिए मैं भी आपको नोट दूंगा और हमारा सम कंप्लीट हो गया है। द टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 135306 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 13,500 प्लस 450 प्लस 8,000 प्लस 2,000, 224,256। And the asset side is 224,256. Kindly wind up the balance sheet. 30 seconds complete कीजिए बैलेंस शीट। बैंक लोन, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए मैं भी आपको नोट लिखवाने जा रहा हूं। एंड दिस कंप्लीट आवर सम एंड ऑलमोस्ट द चैप्टर 2। ओके, नोट दे दीजिए स्टार्ट पे, फुटनोट जो मैंने एक्सप्लेन किया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹2,000 is in trial balance, but there is no adjustment regarding bad debts, provision for doubtful debts, further bad debts, etc. Hence, we have two alternatives. क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में और कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन, तो अब हमारे पास उस प्रोविजन को ट्रीट करने के दो केसेस हैं। ऑल्टरनेटिव नंबर 1, कंसीडर ओल्ड प्रोविजन in the credit side of P&L, that is provision not required anymore, and hence income, and hence income। इसका मतलब ये हो गया बैड डेट्स 0 प्लस फर्दर बैड डेट्स 0 प्लस न्यू प्रोविजन 0 नहीं चाहिए, माइनस ओल्ड प्रोविजन 2000, नेट आंसर आ रहा है 2000 नेगेटिव, इसलिए ये चला जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ P&L। Alternative number 1. This is alternative number 1. Cool? Now what is alternative number 2? Alternative number 2. Consider old provision as new provision.
that is neither we need to create more nor we need to create less. जो पुरानी प्रोविजन है वही न्यू प्रोविजन है, ना तो हमें एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत ना ही हमें कम करने की जरूरत. तो इस केस में हो जाएगा बैड डेट्स 0 प्लस फर्दर बैड डेट्स 0 प्लस न्यू प्रोविजन 2000 माइनस ओल्ड प्रोविजन 2000. कुछ भी नहीं, तो पी एंड एल में कुछ भी नहीं आएगा. और ये शो होगा, पी एंड एल में कुछ भी नहीं आएगा और ये शो होगा डेटर्स में से माइनस, डेटर्स में से माइनस. बट ये हमने पढ़ा है डेटर्स से माइनस करो या प्रो लायबिलिटी साइड पे लिखो, एक ही बात है. वी कैन ऑल्सो शो न्यू प्रोविजन for doubtful debts in liability side. इस सम में नहीं, किसी भी सम में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहीं भी लाइबिलिटी साइड शो कर सकते हैं. और हमने ये ट्रीटमेंट की है, फर्स्ट नहीं सेकंड, हमने सेकंड ट्रीटमेंट की है. तो इस पे स्टार मार्क कीजिए. अगर आप फर्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे बैलेंस शीट मैच कर जाएगी, बट आंसर में डिफरेंस आएगा. नोट डाउन कीजिए जो नोट मैंने आपको लिखवाया है. स्पीड अप. उसके बाद एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपका होमवर्क है, जो आप अपने आप करें. So, question number 40 is your homework. Question 40, self. Prepare a trading and P&L account for the year ending 31st March 2019 from the balances extracted from the books of Messrs. Rahul and Sons. Also prepare a balance sheet at the end of the year. डेबिट साइड पे आज सच कुछ भी नहीं है. इनपुट जीएसटी डेबिट, सीजीएसटी 8000, एसजीएसटी 8000, आईजीएसटी निल. क्रेडिट साइड पे रेंट पड़ा है, देखने में लगता है रेंट रिसीव पेड होगा, बट क्रेडिट साइड है तो रेंट रिसीव्ड है. पी एंड एल में क्रेडिट साइड. लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स लायबिलिटी, एंड देन वी हैव आउटपुट जीएसटी. क्रेडिट साइड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. 5 निल. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन में से माइनस एंड लायबिलिटी. एडजस्टमेंट नंबर 6, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग में से माइनस, पी एंड एल में डेबिट साइड. क्लोजिंग स्टॉक, एसेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. फर्दर बैड डेट्स 1000, डेटर्स में से माइनस, पी एंड एल में डेबिट साइड. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स में से माइनस, पी एंड एल में डेबिट साइड. डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स में से माइनस, पी एंड एल में डेबिट साइड. बट आपको पता है कि हम पहले वर्किंग नोट बनाते हैं. बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. सेम डिस्काउंट प्लस फर्दर डिस्काउंट प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. सेम.
आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में प्लस लाइबिलिटी, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से माइनस एंड एसेट। सेकंड का बी पार्ट, लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स इज टेकन ऑन 5% per annum on 1st October 18. Interest on, here we'll make the working note for that. Interest on X loan accrued. How much is X loan accrued? That would be 40,800 का 5% for 6 months, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर में लोन लिया, हिडन एडजस्टमेंट है, परसेंटेज नीचे गिवन है, 40,800 का लोन, 5% का ब्याज 6 महीने के लिए 10,020। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, ये आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। ट्रायल बैलेंस से आपको मिल रहा है 500, 1020 अक्रू हुआ, 500 पे हुआ, तो हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग? 1020 दे दिया, 500 देना था, नो 1020 देना था, 500 दे दिया, तो हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग? 520। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में प्लस एंड लायबिलिटी, इंटरेस्ट में प्लस एंड लायबिलिटी। एडजस्टमेंट नंबर 2, अक्रूड कमीशन रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल इनकम है, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी अक्रूड रेंट टू रेंट, टू इनकम है तो आउटपुट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। अक्रूड रेंट मतलब रेंट की भी स्लिप देते हैं GST काट के, हम रेंट की स्लिप देते हैं, इनवॉइस देते हैं। हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग अक्रूड रेंट रिसीवेबल? 2000, GST 6%, 120। कूल। ये जाएगा एसेट साइड, ये हो जाएगा रेंट में, P&L में रेंट में प्लस क्रेडिट साइड, P&L में क्रेडिट साइड, रेंट में प्लस अक्रूड रेंट एसेट साइड, ये P&L क्रेडिट में प्लस, ये आउटपुट GST, आउटपुट क्रेडिट है, आउटपुट क्रेडिट है तो प्लस 120 प्लस 120, राइट। ये GST में जाएगा, ये इनकम और ये एसेट, दैट्स इट। इसका टोटल है 16,000 और इसका टोटल है 10,240। इनपुट मतलब डेबिट इज ग्रेटर देन आउटपुट मतलब क्रेडिट। इनपुट बड़ा है क्रेडिट से, आउटपुट से, कितना? 5760 और ये डालेंगे हम एसेट साइड बैलेंस शीट में। इनपुट बड़ा है तो बैलेंस शीट में हम एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे, कितना? 5760। कूल। दिस इज योर सेल्फ प्रैक्टिस and this completes our chapter final accounts with adjustments। 21 lectures, around 16 lectures थे without adjustment और around 21 lectures are with adjustment। Final accounts of incomplete records we are left will be doing after this। Bye bye, take care, God bless।